हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस में आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। हमने सब स्पेसेस कवर किए थे। अब लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। If W1 and W2 are two subspaces of a vector space V over field F, then we define the linear sum of W1 and W2 as W1 plus W2 is equal to W1 plus W2, where W1 belongs to W1 and W2 belongs to subspace W2. So linear sum of subspace डिफाइन करने के लिए we have W1 and W2 two subspaces of vector space over field F. Then linear sum is given by W1 plus W2, और elements किस तरह के होंगे इसमें? W1 plus W2, where W1 belongs to subspace W1 and W2 is the element of subspace W2. स्टूडेंट यहाँ पे एक रिमार्क, आपके पास W1 यूनियन W2 सबस्पेस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, लीनियर सम का सबसेट होगा। वो कैसे? लेट अस टेक एन एलिमेंट W1 ऑफ सबस्पेस W1। सिंस W2 इज अ सबस्पेस, सो अगर वो सबस्पेस है इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर स्पेस, और अगर वेक्टर स्पेस है तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट ज़रूर करेगी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स ज़ीरो, सो ज़ीरो ऑलवेज बिलोंग्स टू W2 सबस्पेस W2 as well as W1 also. So let us first take that 0 belongs to W2. Then we can write W1 as W1 plus 0, where 0 is an element of subspace W2 and W1 is an element of subspace W1. So W1 belongs to W1 plus W2. But W1 कहाँ से लिया था? W1 सबस्पेस W1 में से। So therefore स्पेस सारे एलिमेंट्स W1 के कहाँ चले जाएंगे? W1 plus W2 में। It means W1 is subset of W1 plus W2. Similarly, we can prove that subspace W2 is subspace of W1 plus W2. So, अगर आपके पास सबस्पेस W1 भी सबसेट है W1 plus W2 का, और सबस्पेस W2 भी सबसेट है W1 plus W2 का, तो इनका यूनियन भी कहाँ होगा? क्या होगा? Subset of W1 plus W2. So important remark that union of two subspaces W1 and W2 is a subset of linear sum of W1 and W2. So now theorem: linear sum of two subspaces W1 and W2 is also a सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। सो अब आपने ये प्रूव करना है कि जो लीनियर आपने सम किया सब स्पेसेस का, वो भी एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस वी का ओवर द फील्ड एफ। सो लेट अस प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे? कोई भी आपके पास सबसेट है तो उसको हम सबस्पेस कैसे प्रूव करते हैं? जैसे हमने लास्ट टाइम किया, इफ़ वी हैव टू एलिमेंट्स बिलोंग टू दैट सबसेट एंड alpha u plus beta v from alpha, where alpha and beta belongs to the field F and u and v belongs to that set, then if alpha u plus beta v belongs to the set, then that set will become a subspace of vector space V over the field F. So यहाँ पे भी हम यही करेंगे. Let W1 and W2 be the two subspaces of vector space V over field F. We have to prove that linear sum, that is W1 plus W2 is also a subspace of vector space V over field F. So let us take two elements of W1 plus W2. So let us take u comma v belongs to W1 plus W2. So if we have two elements u v belongs to W1 plus W2, then u is of the type W1 plus W2 for some W1 belongs to W1 and W2 कहाँ से आया? W2 में से। और V किस तरह का होगा? W1 डैश प्लस W2 डैश
for some w1 dash belong to the subspace w1 and w2 dash belongs to subspace w2. So let us take alpha beta की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया ab. Let us take ab, two elements from field f given to you, field f, and let us calculate au plus b times v, where u and v are elements of w1 plus w2. So let us check whether a times u plus b times v also belongs to w1 plus w2 or not. So a times u is w1 plus w2, b times v is w1 dash w2. So when we calculate this, we get a w1 plus b w1 dash, यहाँ से इसका एक एलिमेंट एक यहाँ से, प्लस a w2 प्लस b w2 डैश. अब आपके पास w1 और w2 दो सब स्पेसेस हैं और w1 और w1 डैश w1 के एलिमेंट्स हैं. So a times w1 plus b times w1 dash also belongs to w1 because w1 is a subspace. For a, b belongs to the field f. And a times w2 because w2 and w2 dash are both belongs to subspace w2. So a times w2 plus b times w2 dash also belongs to w2. So अब आपके पास a w1 dash plus b w1, a w1 plus b w1 dash w1 का एलिमेंट हो गया, a w2 plus b w2 dash w2 का एलिमेंट हो गया. सो आपके पास a u plus b times v किसका एलिमेंट कहाँ चला जाएगा? दिस बिलोंग्स टू w1 plus w2. सो आपके पास ये क्या इम्प्लाई करता है? दैट w1 plus w2 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f. सो अभी तक हमने किया इफ यू हैव अ सब स्पेस w1 एंड w2 देन लीनियर सम ऑफ दीज टू सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर फील्ड f. How we define linear sum of w1 plus w2? w1 plus w2 contain all the elements of the type w1 plus w2 where w1 belongs to subspace w1 and w2 belongs to subspace w2. So next is space generated by a set. Subspace. How will we generate this? How can we generate subspace with the help of a set? So सबसे पहले definition. Let V be the vector space over a field F and S be the subset of vector space V. Then W is said to be subspace generated by this S if W is the smallest subspace of V containing S and it is always denoted by W is equal to angular brackets में S. So आपके पास डेफिनेशन क्या है? अगर मैं कहूँ कि W is generated by S then it means that W is the smallest subspace of V containing S. So जिस सेट से कोई सबस्पेस जनरेट हो रहा है उसको हमने अगर दिखाना है कि इट इज़ जनरेटेड बाय दैट सेट देन वी हैव टू प्रूव दैट दैट सबस्पेस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग द सेट S. सो यहाँ पे भी अब नेक्स्ट theorem is very important. We have to prove the linear sum of two subspaces w1 and w2 of a vector space V over field F is a subspace generated by union of w1 and w2. So जो आपका linear sum वाला subspace अभी तक हमने पढ़ा है w1 plus w2 किससे generate हुआ है? It is generated by which set? w1 union w2. So अगर मैं डेफिनेशन से जाऊं, अगर मुझे ये शो करना है कि w1 plus w2 इज जनरेटेड बाय w1 यूनियन w2, सो आई हैव टू शो दैट w1 plus w2 इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ सबस्पेस ऑफ v कंटेनिंग w1 यूनियन w2. ठीक है, सो हमें ये प्रूव करना है. सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट w1 यूनियन w2 इज सबसेट ऑफ w1 plus w2. स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक रिमार्क में ये प्रूव किया था दैट यूनियन ऑफ w1 एंड w2 इज सबसेट ऑफ लीनियर सम w1 प्लस w2. क्लियर? सो ये सबसेट तो है. सो ऑल्सो w1 प्लस w2 इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F.
अब आपको ये भी पता है कि W1 और W प्लस W2 जो लीनियर सम है, अभी हमने प्रूव किया, इट इज़ ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F. So to prove that W1 plus W2 is generated by W1 union W2, we have to show that W1 plus W2 is the smallest subspace of V containing W1 union W2. अब हम इसको कैसे शो करेंगे कि ये स्मॉलेस्ट है? कैसे शो करेंगे? हम एक सबस्पेस और ले लेंगे V का. अगर हमने एक सबस्पेस और ले लिया V का W, जो किसको कंटेन कर रहा है? कंटेनिंग W1 यूनियन W2. मीन्स आपके पास W1 यूनियन W2 जो है वो किस में कंटेन्ड है? W में कंटेन है. ठीक है. और हम ये शो कर दें कि जो W1 प्लस W2 है वो भी किस में कंटेन है? W में. ठीक है. हम ये शो कर दें कि W1 प्लस W2 जो है वो W में ही कंटेन है, तो हम ये शो कर देंगे कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2. क्लियर है? आपने ये प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 इज़ द स्मॉलेस्ट सबस्पेस विच कंटेन W1 यूनियन W2. ठीक है. W1 यूनियन W2 तो W1 प्लस W2 में है ही. ठीक है. आपके पास W1 यूनियन W2 तो इसमें है ही कंटेन. आपने ये प्रूव करना है दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V. स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V प्रूव करने के लिए हम कोई और सबस्पेस ले लेते हैं V का और ये प्रूव कर दें कि वो जो सबस्पेस है वो भी कंटेन करता है W1 यूनियन W2 को, बट जो W1 प्लस W2 है वो उसमें कंटेन है. तो हम ये प्रूव करेंगे कि W1 प्लस W2 इज ऑल्सो कंटेन्ड इन W. तो अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारा W1 प्लस W2 जो है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस हो जाएगा विच कंटेनिंग W1 यूनियन W2. सो हमने क्या प्रूव करना है? दैट W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ W. So we have to prove this. So it is sufficient to prove that W1 plus W2 is subset of W. So let us take an element U from here. U from W1 plus W2. So अगर U लीनियर सम में से हम ले तो U किस टाइप का होगा? U is of the type W1 plus W2 where W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2. Since W1 union W2 is contained in W. ठीक है. आपके पास यूनियन ये हमने लिया हुआ है ना, W इज़ द अनदर सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 यूनियन W2. तो अगर आपके पास W1 यूनियन W2 W में कंटेन है तो इट मीन्स W1 के एलिमेंट और W2 के भी एलिमेंट कहाँ पे होंगे? सबस्पेस W में. सो अब W1 के एलिमेंट कौन सा था? W1. W2 का एलिमेंट अभी तक हमने कौन सा लिया? W2. तो ये दोनों W1 और W2 के जो एलिमेंट है वो कहाँ चले जाएंगे? W में. They also belongs to W because W1 union W2 is contained in subspace W. So अगर आपके पास दो एलिमेंट्स W में आ गए और W एक सबस्पेस है, अगर W एक सबस्पेस है तो W में एडिशन प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी. इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वेक्टर एडिशन. तो इन दोनों का जो सम है वो भी कहाँ चला जाएगा? W में. सो W1 प्लस W2 इज कंटेन इन W1 प्लस W2 जो एलिमेंट है वो कहाँ चला जाएगा? W में. सो इट बिलोंग्स टू W. बट व्हाट इज W1 प्लस W2? U. सो U बिलोंग्स टू W. बट U कहाँ से लिया था? W1 प्लस W2 में से. और U कहाँ चला गया? W में. तो सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे होंगे W1 प्लस W2 में वो कहाँ चले जाएंगे? W में. सो W1 प्लस W2 इटसेल्फ पूरे का पूरा सेट कहाँ चला गया? W में. सो यही हमने प्रूव करना था कि W एक सबस्पेस है बट W1 प्लस W2 तो उसके अंदर कंटेन है. तो इट मीन्स W1 प्लस W2 सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा. अगर आप W की जगह W डैश भी ले लो, कोई और सबस्पेस भी ले लो,
तब भी आप सिमिलर प्रोसीजर से ये शो कर पाओगे कि W1 प्लस W2 इज कंटेन इन दैट सबस्पेस ऑल्सो। सो हमने एट रैंडम कोई सबस्पेस उठाया और ये शो कर दिया कि जो आपका W1 प्लस W2 है वो उसमें कंटेन है। तो इट मीन्स ये क्या शो करता है, दैट W1 प्लस W2 इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सबस्पेसेस ऑफ V कंटेनिंग W1 यूनियन W2। सो W1 यूनियन W तो आपके पास W में भी था और W1 प्लस W2 में भी था। आपने ये शो कर दिया कि W1 प्लस W2 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस। सो इससे क्या प्रूव हो गया, इट इज नाउ प्रूव दैट W1 प्लस W2 इज जनरेटेड बाय सेट W1 यूनियन W2। सो दिस कंप्लीट्स today's lecture. Next lecture में हम करेंगे direct sum of subspaces. So thank you for watching the video.